Good morning, friends. Welcome back to FinGrow. This is Pandon Raje. So आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट बेसिक मास्टर क्लास 1. Okay. So as you can see my screen, so I have created one kind of short PPT for you to explain about the share market in the short. Okay. So you can start this very quickly. It's not going to be a very long video. So recording actually it will be hardly 30 minutes. So let's go through it. Okay. Yeah. So you can see here. So the stock market is not a place gamble. It is a place where knowledge, patience, discipline, and risk management create a long-term wealth. So before entering the stock market, हम means entry market में आने से पहले हमको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक मार्केट ये कोई गैम्बल प्लेस नहीं है, ये कोई कसिनो नहीं है. सो दिस इज अ प्लेस वेयर नीड नॉलेज. नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में. तुम्हारे सब में बहुत पेशेंस होनी चाहिए मार्केट ग्रो करने के लिए. इट विल टेक टाइम, राइट? सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन you can make a profit. So you should have good patience, discipline, consistency. You should have. So you should be disciplined investor. If you're investing very disciplined manner and consistently, then you definitely are going to make a profit. And the last is the risk management. You should know how much you are going to take a risk for your the stock market trading, right? Like trading or investing, whatever it is, you should have your risk calculated. क्योंकि मार्केट में सबसे पहले जो इजी और फ्री मिलता है वो है रिस्क, विच इज लॉस, राइट? तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि जब भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें कितना पैसा लूज करने से कितना मेंटली स्ट्रेस नहीं होगा या फाइनेंशियल इफेक्ट नहीं होगा. सो keep ensure that things only invest those money in the market which is you are like out of from your saving, out of from emergency fund. So जो तुम्हारा इमरजेंसी फंड से साइड में रखा हुआ एडिशनल फंड है, एक्स्ट्रा मनी कहते हैं, तो वो वाला ही पैसा तुम मार्केट में लगाओ. अदरवाइज दिस गोइंग टू बी वेरी डिजास्टर फॉर यू. अगर आपने कोई तुम्हारा सेविंग का या कोई इमरजेंसी फंड का अगर पैसा निकाल के मार्केट में लगाया, so that's going to be very risky for you. So this is not advisable to anyone to invest money on your own risk, right? First thing. Second, don't take a loan or anything to invest in the stock market. Use your free money टू इन्वेस्ट इन स्टॉक में. अगर वो पैसा मार्केट में जीरो भी होता है तब आपको मेंटली कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए. सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. सो कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस फोर थिंग. फर्स्ट, यू नीड अ नॉलेज. नॉलेज होना चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में. हाउ इट्स वर्क, what is the candlestick, how the price is moving, how the global news impact on the stock market, that you should know everything about it, right? Second is the patience. You should have very good patience on the stock market. सो अदरवाइज यू नॉट गोइंग टू मेक मनी. अगर थोड़ा भी लॉस दिखा तो एग्जिट हो जाते हो, दैन दिस नॉट गुड. दिस दिस इज नॉट अ प्लेस फॉर यू एक्चुअली. सेकेंड इज अ डिसिप्लिन. एज आई सेड, यू हैव टू इन्वेस्ट डिसिप्लिन. डिसिप्लिन रखना चाहिए इन्वेस्टिंग करते समय, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करना है. और सेकेंड लास्ट इज रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट इज अनदर very important thing. Okay, let's move on to the next point. So now you can see here what is the stock market, right? So इसके स्टॉक मार्केट में रिलेवेंट मैंने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बनाया है. स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, राइट? एंड आई हैव गिवन इट वन वेरी सिंपल लैंग्वेज. as I've given an example of two friends, how they are trying to invest in the stock market, how they are growing their wealth like this, right? So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो. अदरवाइज आई कैन पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ओके, तभी हम यहाँ पे देखते हैं स्टॉक मार्केट है क्या इन शॉर्ट. So a stock market is a platform where company raise capital by issuing shares and investors buy and sell those shares to earn return through price appreciation and dividend, right? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे कंपनीज अपना कैपिटल रेज करती है, राइट? किस लिए करती है रेज? क्योंकि उनको बिजनेस एक्सपांड करना है, बिजनेस में कुछ नया लाना है, इसलिए वो इन्वेस्टर से कैपिटल रेज करती है. सेकेंड चीज क्या होती है कि स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टर्स होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वो शेयर्स को बाय और सेल करते रहते हैं, राइट? सो एंड उसकी जनरेट मतलब बाय और सेल के थ्रू से वो लोग प्रॉफिट जनरेट करते हैं. हाउ? कि प्राइस अप्रिशिएट होता है. कि अगर आज हमने कोई रिलायंस का शेयर्स खरीदा है तो कुछ दिन के बाद वो डिमांड सप्लाई उससे जिस हिसाब से चलता है उस हिसाब से प्राइस मूवमेंट होता रहेगा. और प्राइस मूवमेंट होएगा तो डेफिनेटली the shares price going to be increased. Second is dividend. As and when company make a profit, they will distribute
फ्री कैश एज ए डिविडेंड टू द इन्वेस्टर, राइट। जब कंपनी कुछ अच्छा प्रॉफिट बनाती है, देन वो जो बचा हुआ प्रॉफिट रहता है, दैट प्रॉफिट दे डिस्ट्रीब्यूट करती है जो भी उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड मिलता है। okay? तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजर प्लेयर्स कौन कौन है? सबसे बड़ा है एनएससी, बीएससी और सेबी, तीन मेजर प्लेयर्स है, राइट। ऑल दिस थ्री, बिकॉज एनएससी है, टू एक्सचेंजेस है अपने पास, एक एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो एक्सचेंजेस है। और रेगुलेटरी जो है वो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो मैंने एनएससी, बीएससी और सेबी इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाया है, हाउ दे वर्क, हाउ दे रेगुलेट द मार्केट, हाउ एक्सचेंजेस वर्क, राइट। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी लोडेड है, आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हो डिटेल में। ऑल्सो आई विल put that link in the description box. Okay, so let's move on. अभी देखिए, स्टॉक मार्केट हम तो नॉर्मल जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ही है, लेकिन एक्चुअली स्टॉक मार्केट होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट एक होता है, स्टॉक मार्केट एक्चुअली डिवाइड हुआ है टू मार्केट्स में, राइट। आईपीओ कैन से लाइक दैट। फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट और सेकंड है तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, राइट, इज डिवाइड इन टू पार्ट्स। प्राइमरी मार्केट is a market where people buy shares directly from the company। जहाँ पे लोग कंपनी से डायरेक्ट शेयर्स खरीदते हैं उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। वो कब होता है, जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने से पहले, जैसे कि वो आईपीओ लेके आती है। आईपीओ तुम्हारा प्राइमरी मार्केट का कंसेप्ट हो गया, राइट। एफपीओ हो गया, वो तुम्हारा प्राइमरी मार्केट, जहाँ पे कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टर्स और बायर्स डायरेक्टली शेयर्स खरीदते हैं कंपनी से, जो कि एक्सचेंज पे बाय सेल नहीं करते हैं। ओके, जब भी तुम आईपीओ को अप्लाई करते हो, सीधा तुम अप्लाई जो करते हो जाता है कंपनी के पास, थ्रू एक्सचेंज के थ्रू ही जाएगा, वो डिपॉजिटरी एक्सचेंज की इनके थ्रू ही जाएगा, लेकिन वो जाएगा तुम्हारे कंपनी के पास। एंड देन कंपनी जब तुमको अलॉटमेंट होता है, तब कंपनी फर्स्ट टाइम वो शेयर्स तुमको अलॉट करती है, तो उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट जो हमारा डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, जैसे एनएससी बीएससी पे हम कोई शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, ऑप्शंस खरीदते हैं, फ्यूचर खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं डेली, वो तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट आ जाता है। प्राइमरी मार्केट में तुम फर्स्ट बाय किया, जब तुम सेल करने जाते हो, दैट सेकंड केम इन द सेकेंडरी मार्केट, राइट। तुम सिर्फ प्राइमरी मार्केट तुम बाय कर सकते हो, सेलिंग नहीं कर सकते। ओके, दैट्स कीप इन द माइंड। सो प्राइमरी मार्केट हमने देखा अभी डिटेल में। सो प्राइमरी मार्केट इज अ वेयर कंपनी इशू इट्स शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, न्यू इशू शेयर्स or to raise a money, right? Then the money goes directly to the company। तो इसमें जो फर्स्ट टाइम कंपनी आईपीओ लेके आती है, वहाँ पे जो भी पैसा है वो डायरेक्टली जाता है कहाँ पे, कंपनी के पास चला जाता है, कोई एक्सचेंज या किसी के थ्रू नहीं जाता, राइट। तो ये तो एग्जांपल हम देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने लिया एबीसी लिमिटेड नीड 500 करोड़ टू एक्सपांड इट्स बिजनेस। तो एबीसी कंपनी को 500 करोड़ की जरूरत है वो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। वो पैसा कहाँ से लाएंगे? दे विल लॉन्च आईपीओ। आईपीओ लॉन्च करने के बाद उसमें जो भी अलॉटमेंट होगा इन्वेस्टर को, उससे जनरेट जो भी पैसा मिलेगा कंपनी को, वो पैसा वो अपने बिजनेस एक्सपांड करने के लिए यूज कर सकती है। तो प्राइमरी मार्केट में अगर एग्जांपल देखेंगे तो एक आईपीओ होता है, एफपीओ होता है मेजर की, राइट इश्यू और प्रेफरेंशियल शेयर्स। ये दो भी इशू होते हैं एक्चुअली, वो वहाँ पे भी तुमको नए शेयर्स मिलते हैं। राइट इशू में ऐसा होता है कि जहाँ पे कंपनी जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है, एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर्स है, उनको कुछ एडिशनल शेयर्स इशू करते हैं, मतलब डिविडेंड की जगह पे वो इशू दे न्यू शेयर्स इशू करते हैं, लाइक दैट वे ओनली, राइट। So IPO, FPO is the measure, the right issue and preferential issue is later. So you can just ignore the preferential issue. That's majorly not happen in a Indian market, but still that's there for your knowledge purpose। तो आपके नॉलेज के लिए मैंने these 4 concepts यहाँ पे लिखी है। अब आते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ओके, आफ्टर शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर्स बाय सेल देम among themselves, this is called the secondary market। okay, इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट होने के बाद जब उस शेयर्स को बाय सेल किया जाता है एक्सचेंज पे, वहां पे सेकेंडरी मार्केट आता है। तुम्हारा एनएससी बीएससी ये तुम्हारा सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, राइट। एग्जांपल देखेंगे हम, तो हमने कभी सुबह मॉर्निंग किसी कंपनी का शेयर्स खरीद शेयर्स बाय किए और उस शेयर्स को हमने आफ्टरनून में बेच दिया एक्सचेंज पे, इसका मतलब वो सेकेंडरी मार्केट में आए। सेकेंडरी मार्केट तो एनएससी बीएससी थ्रू चलता है, वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं हम मार्केट पार्टिसिपेंट, राइट।
तभी होता क्या है, मार्केट पार्टिसिपेंट क्या है, मतलब मार्केट में कौन कौन लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं डेली बेसिस पे। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे हम। फर्स्ट है इन्वेस्टर, जो डेली बेस पे वहाँ पे इन्वेस्टिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, बाय शेयर्स कर शेयर्स को बाय और सेल करते रहते हैं, इन्वेस्टिंग करके रखते हैं। तुम्हारा फर्स्ट इन्वेस्टर हो गए। सेकंड ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स है डेली वो भी बाय सेल करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, वट एवर इज है। इन्वेस्टर मोस्टली वो लॉन्ग टर्म पे रहता है, राइट। ब्रोकर्स, ब्रोकर्स जो तुम्हें हेल्प करते हैं एक्सचेंज पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने के, जैसे कि जीरोदा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग, फायर्स, एपस्टॉक, ये सारे जो ब्रोकर्स है, जैसे एच सिक्योरिटी हो गया, ये सारे ब्रोकर्स है जो आपको हेल्प करते हैं एक्सचेंज पे ट्रेड करने के लिए, राइट। देन नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंजेस, एक्सचेंज जैसे मैंने बात किया था एनएससी बीएससी, दे आर आल्सो मार्केट पार्टिसिपेंट। ये भी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है जो मार्केट में काम करते हैं, एनएससी बीएससी एक्सचेंजेस है। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी क्या करते हैं, डिपॉजिटरी आपकी शेयर्स होल्ड करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ओके, वो आपकी डीमैट अकाउंट में रहता है, राइट। तो उसके लिए दो डिपॉजिटरी है अपने इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ओके। ये दो डिपॉजिटरी है जो आपकी शेयर्स जब तुम बाय और सेल एग्जीक्यूट करते हो तो उसका सेटलमेंट करना, उसका मतलब आपने अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदे आज, तो वो रिलायंस के शेयर्स उसके सेटल होने और आपके अकाउंट से पैसा जाना और वो शेयर्स आपके अकाउंट में ऐड होना, मतलब होल्ड करना, राइट, डिजिटल फॉर्म में वो डिपॉजिट करता है जो एनएसडीएल और सीडीएसएल करते हैं, राइट। तो आप देखोगे कभी आपने शेयर्स खरीदे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शेयर्स आपके घर आ गए, राइट, योर परचेस। जो भी आपने शेयर्स खरीदे वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े रहेंगे। सो वो जो डीमैट अकाउंट होल्ड करने का और उसे बैकएंड सपोर्ट है, उसका सेटलमेंट का काम पूरा एनएसडीएल और सीडीएसएल करता है। बाद में तुम्हारा म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड ऑल्सो पार्टिसिपेंट, अपने इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, एचडीएफसी हो गया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, ये सब जो म्यूचुअल फंड्स है ये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और देखते हैं और कौन है पार्टिसिपेंट, एफआईआई और एफपीआई। एफआईआई क्या होता है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बाहर के इन्वेस्टर्स है, इंडिया के बाहर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो भी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ अमेरिकन इन्वेस्टर, कोई सिंगापुर, कोई यूके, कोई ऑस्ट्रेलिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूट कंपनीज है, राइट, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जैसे कि ब्लैक रॉक होगा, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है वर्ल्ड में, वेन्यूगार्ड हो गया, गवर्नमेंट पेंशन बॉन्ड्स होते हैं किस कंपनी गवर्नमेंट के, वो इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। जैसे यूएस का पेंशन बॉन्ड फंड अपने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, तो वो भी हो गया, राइट। सो इस तरह वो एफ पी आई, एफ पी एफ आई आई और एफ पी आई इसे कहते हैं। बाद में लास्ट वाला है डी आई आई। डी आई आई क्या होता है, ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, इंडिया के अंदर के जो इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, लाइक एल आई सी होगा, एल आई सी भी बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। एसबीआई होता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड, और ईपीओ मतलब ईपीएफओ, वो है अपना पीएफ, जो एम्प्लॉय का जो पीएफ डिडक्ट होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो फंड अपने पास खुद नहीं रखती, वो भी कुछ पोर्शन उसका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो लाइक दैट वे। सो एफपीआई हो गया, डीआईआई हो गए, ऊपर जाएंगे तो हमने यहाँ देखिए म्यूचुअल फंड्स, डिपॉजिटरी, स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर, ट्रेडर्स एंड लास्ट इज इन्वेस्टर, लाइक दैट वे। तो ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट है, ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं उसकी वजह से, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ व्हाट इज आईपीओ। हमने तो यहाँ पे देखा प्राइमरी मार्केट देखा, सेकेंडरी मार्केट देखा और मार्केट पार्टिसिपेंट चेक किया। अभी आईपीओ होता क्या है, हम आपने बहुत बार सुना होगा, ये मार्केट में आईपीओ आया, नए कंपनी का आईपीओ आया, दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आईपीओ। कुछ साल में देखा हमने, पहले तो एलआईसी का आया था, जोमेटो का, एंड देन ऑल दीज आर बिग बिग कंपनीज आर दे इंट्रोड्यूस देयर आईपीओ, राइट। सो बहुत सारी कंपनी का आईपीओ आए थे, मतलब ये होता क्या है आईपीओ, क्यों रेस किया जाता है, उसका रीजन क्या है वो देखते हैं, ओके। So IPO is a first time private company offer its share to public and get listed on the stock exchanges, right? तो आईपीओ एक ऐसा है कि जो एक प्राइवेट कंपनी हो, सब फर्स्ट टाइम पे वो पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं और खुद को एक्सचेंज पे लिस्टेड करते हैं, और पब्लिक को इशू करने का उसके अगेंस्ट में वो मनी जनरेट करते हैं, कैपिटल जनरेट करते हैं, राइट। सो क्योंकि उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो न्यू शेयर्स मार्केट में इशू करते हैं, राइट। सो आईपीओ तो ये हो गया, ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, एंड एक्चुअली वो लिस्टेड जो होता है एनएससी बीएससी पे होता है, राइट। व्हाई कंपनी डू दिस आईपीओ, सिंपल थिंग है, रेजिंग मनी, किसी कंपनी को कैपिटल रेज करना है वो इन्वेस्ट करने के लिए, और
बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। सेकंड होता है रीपे डेब्ट, कुछ उनका एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है बड़ा सा, कंपनी अच्छी है, दे आर डूइंग गुड जॉब, बट दे स्टिल नीड टू रीपे द सम काइंड ऑफ लोन, राइट, क्योंकि वो बिजनेस बड़ा है, उन्होंने लोन लिया होगा, तो वो लोन को रिपे करने के लिए वो आईपीओ इशू करते हैं। लेकिन 100% लोन रिप्यू करने का आईपीओ कोई इशू नहीं करता, एनएससी और सीबी उसको अप्लाई नहीं करते, राइट। सम पोर्शन यू कैन सी, पेटीएम ने वही किया था लास्ट टाइम, देखोगे आप, उन्होंने जो भी आईपीओ आया था उसका 50% शायद उन्होंने लोन रिपे करने के लिए यूज किया था, राइट। बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज, एज आई सेड, बिजनेस बड़ा करने के लिए नए फैक्ट्रीज बनाने के लिए चाहिए, नई टेक्नोलॉजी लाना है उनको, बिजनेस को एक्सपांड करना है, सेल्स बढ़ाना है, नए नए जगह पे शॉप्स ओपन करने हैं, इसलिए उनको आईपीओ लेके आते हैं, राइट। तो अभी वही एग्जांपल हमने देखा कि किसी कंपनी को, अगर यहाँ पे दिखा है मैंने, एबीसी कंपनी को 100 करोड़, मतलब 1000 करोड़ का एक्सपांड करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उन्होंने इसलिए शेयर्स इशू किए, शेयर्स से कैपिटल जनरेट हुआ, उस कैपिटल से उन्होंने खुद का बिजनेस एक्सपांड किया, लाइक दैट वे। सेकेंड होता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर क्या होता है, राइट? ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर इज व्हेन अ कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, ओके, ऑलरेडी लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस, इशू न्यू शेयर्स अगेन द रेजिंग एडिशनल फंड। जो कंपनी ऑलरेडी एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जैसे कि रिलायंस ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उनको एडिशनल कुछ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, ओके, एडिशनल कैपिटल, ऑलरेडी उनके पास कैपिटल, लेकिन उनको एक्सपांड करना है। अभी रिलायंस ने रिसेंटली कुछ कहाँ पे जियो का इंट्रोड्यूस किया है, राइट, जियो पेट्रोल पंप देखते हो आप कहीं पे, उनको अगर रिफाइनरी एक्सपांड करना है तो रिफाइनरी के लिए ज़्यादा कैपिटल लगता है, तो उस रिफाइनरी रिफाइनरी को एक्सटेंड करने के लिए और नई रिफाइनरी बनाने के लिए उनको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैपिटल जनरेट करने के लिए वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर करते हैं, मतलब और कुछ शेयर्स इशू करते हैं, उससे जो भी कैपिटल जनरेट हुआ वो कैपिटल अपने बिजनेस में लगाते हैं, लाइक दैट वे, ओके। Next is offer for sale. Offer is, this is completely different. Offer for sale. Okay, this company does not receive money. इसमें कंपनी को कुछ भी मनी नहीं मिलता है. Okay, so existing shareholders sell their shares. These shareholders could be promoters, government, प्राइवेट इक्विटी होल्डर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट. ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, उनके लिए ये OFS निकाला जाता है कि वो अपने शेयर्स पब्लिक में शेयर बेचे, लाइक लाइक प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स यानी कंपनी के जो भी ओनर्स है, राइट, वो लोग क्या करते हैं कि उनका कुछ स्टॉक होता है, उनका कुछ स्टेक होता है, वो रिलीज करते हैं मार्केट, वो सेल करते हैं, वो मनी जनरेट करते हैं, राइट, उसके लिए। और इसका जो जो भी मनी जनरेट होता है वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता, वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर के पास ही जाएगा। और कोई कंपनी का ओनर है, उसने बोले उसके पास अगर 30% स्टॉक है तो 10% रिलीज करना है, तो वो 10% रिलीज करने से पहले उसको सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है, देन ही हैज टू सेल द that his portion in the market, right, वो शेयर्स जो है उनके मार्केट में सेल करता है वो, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट शुड यू चेक बिफोर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ, राइट। आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें क्या देखना है, राइट, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लाइंडली आप देखोगे बहुत सारे लोग, न्यूज आता है मार्केट में, इसकी वजह से वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमको बहुत सारी चीजें देखनी है। आई हैव लिस्टेड डाउन हियर, मैंने कुछ 10 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं जो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो लेट्स सी वन बाय वन, ओके। सो फर्स्ट इज बिजनेस मॉडल। पहले तुम्हें समझना है कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, राइट, और उस सेक्टर में उसका कॉम्पिटिटर कौन है, और उस सेक्टर में कंपनी कैसा कर रही है, सो हाउ इज ग्रोथ डूइंग, सो ये सब चीजें आपको देखना है। फर्स्ट चेक द बिजनेस मॉडल एंड ऑल दिस थिंग। सेकंड इज रेवेन्यू ग्रोथ, चेक इफ सेल्स आर इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली, मतलब कंपनी का पिछले 2-4 साल का तुम आप एक ट्रेंड देखो, उनका बैलेंस शीट चेक करो, उनका सेल्स देखो कि सेल्स उनका कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कंपनी का सेल्स किस साल पे ऊपर जा रहा है, कब नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब कंपनी स्टेबल नहीं हो रही है, उतना मार्केट में अपना प्रॉपरली स्टेबल नहीं हुआ है, मार्केट नहीं बिल्ड कर पाया उस कंटिन्यू पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन इसी एक ही पॉइंट के ऊपर आपको डिसीजन नहीं लेना है, बाकी सारे पॉइंट भी चेक करेंगे हम। प्रॉफिट ग्रोथ देखना है, कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन उसमें नेट प्रॉफिट कितना है, राइट, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी में। अगर कंपनी ग्रॉस मार्जिन है, राइट, 100 करोड़ का, लेकिन उसके अंदर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है, उसने कितना कॉस्ट लगा है टोटल उस प्रोडक्ट बनाने के लिए और मार्केट तक बेचने के लिए, सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के बाद जो तुम्हारा बचता है वो नेट प्रॉफिट रहेगा, वो नेट प्रॉफिट कितना है उस पर ध्यान देना है। सो नेट प्रॉफिट पे ऑलवेज फोकस ऑन दैट,
ओके, अगर लेस से नेट प्रॉफिट देन दैट कैन बी वेरी रिस्की। ओके, डेब्ट, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कितना कर्जा है, कंपनी फाइनेंस में डूबी हुई है, ज़्यादा लोन लेके ओवर बर्डन है, उनको वो लोन रीपे नहीं हो रहा है इसलिए वो आईपीओ ला रहे हैं, या कंपनी एक्सपांड हो रहा है किस लिए उसने लोन लिया था, उस लोन का कितना पोर्शन उन्होंने पे किया, कितना अभी बचा हुआ है, ये सब चीज़ें देखना बहुत जरूरी होती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग, ये क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि पिछले इसमें ओ एफ एस में प्रोमोटर्स रिलीज करते हैं, वैसे ये प्रोमोटर्स होल्डिंग है, मतलब यहाँ पे प्रोमोटर्स का मीन्स कंपनी के ओनर का कितना होल्डिंग है उस आईपीओ में, राइट। अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग ज्यादा है इसका मतलब उस कंपनी में कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा कि प्रोमोटर्स भी खुद का ही पैसा उसके अंदर लगा रहा है खुद के बिजनेस में। ऐसा नहीं कि पूरा 100% मार्केट में इशू किया और पब्लिक से पैसा लेके बिजनेस चला रहे, दैट इज अगेन गोइंग टू बी रिस्की, बिकॉज उसमें प्रोमोटर का कोई पैसा जाने वाला नहीं है, वो दूसरे के पैसों से ही ट्रेडिंग करेगा, दूसरे दूसरे के पैसे से ही बिजनेस करेगा, एक्सपांड करेगा। तो अगर लॉस हुआ तो प्रोमोटर विल नॉट गोइंग टू बी दैट दे आर नॉट गोइंग टू लूज मनी लाइक दैट वे, राइट। तो हमें देखना है कि प्रोमोटर का भी कितना पोर्शन है उसके अंदर, अगर प्रोमोटर का ज्यादा पोर्शन है तो दैट इज ऑल्सो गिव अ गुड कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस। ओके, जैसे मैंने बोला था आईपीओ का पर्पस क्या है वो भी देखना है हमें, क्यों मनी रेज कर रही है कंपनी, उसका मेन कारण क्या है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कि अगर बिजनेस बढ़ाना है, लोन रिपे करना है, वो सब चीजें आपको देखना है। बाद में आता है वैल्यूएशन। अब ये वैल्यूएशन के लिए एक्चुअली दीज आर दी फाइनेंशियल कंसेप्ट्स। ओके, सो आपको पी रेशियो देखना है, देन प्रॉफिट इक्विटी, देन पीबी रेशियो देखना है, ईबिटा देखना है। ओके, एक्चुअली दीज आर द फाइनेंशियल कंसेप्ट, इसको ये वाले वैल्यूएशन पॉइंट में किसी और दिन किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आपको ये वैल्यूएशन पॉइंट जानना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर द आईपीओ। इंडस्ट्री आउटलुक, आपको ये भी देखना है कि उसका कॉम्पिटिटर कौन है, उस इंडस्ट्री का आउटलुक क्या है, मतलब फ्यूचर में उसका क्या स्कोप होने वाला है, उसके लिए गवर्नमेंट की कुछ नई पॉलिसीज आ रही है कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, उस गवर्नमेंट की पॉलिसी से इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट होने वाला है, ये भी देखना जरूरी है आपके लिए, राइट। देन नाइन्थ इज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर्स कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट। लाइक म्यूचुअल फंड कुछ इन्वेस्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर आईपीओ में, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं बड़े बड़े, लाइक जेपी मॉर्गन हो गया, गोल्डमैन सैक हो गए, यूबीएस बैंक हो गई, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर अप्लाई किया है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, राइट। कितना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेंट है, अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेट नहीं है, बहुत ही निग्लिजिबल लेवल पे है, तो आपको एक बात सोचना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तभी इन्वेस्ट करते हैं जब उनको उस बिजनेस में कॉन्फिडेंस है, उस बिजनेस मॉडल में उनको ट्रस्ट है, कुछ फ्यूचर में जाके वो ग्रो कर सकता है कंपनी, तभी जाके वो इन्वेस्ट करते हैं। और लास्ट है फाइनेंशियल रिस्क, अगेन दिस इज फाइनेंशियल कंसेप्ट एज आई सेड। सो वैल्यूएशन एंड फाइनेंशियल रिस्क ये मैं किसी और दिन वीडियो में और रिकॉर्ड करूंगा डिटेल में, so that you can easily understand what is this. So return on equity, EPS, net profit margin, debt to equity and operating margin, ये जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है मैंने यहाँ पे लिस्टेड किए, ये आपको देखने चाहिए, लेकिन एक्चुअली आई नो दिस इज फाइनेंशियल कंसेप्ट, एवरीवन को मतलब हर एक आदमी को, कोई भी फाइनेंस सेक्टर से नहीं है उसको इसके बारे में इतना डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन ईजी वे इन अनदर वीडियो। ओके, नाउ सो what you have learned, so this is the overall thing what I want to explain about the market. So don't I just given the one sentence here, so that make you easy to understand, and also that is very important while you applying for the IPOs. Don't apply for an IPO because everyone is talking about it. Apply because you understand the business, trust its future, and believe the price is reasonable. इसका मतलब यह है कि आईपीओ को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, आईपीओ इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, डोंट एवर एवर अप्लाई ब्लाइंडली फॉर आईपीओ। ओके, आईपीओ को अप्लाई करने से पहले जो मैंने ऊपर 10 पॉइंट्स दिए थे, वो 10 पॉइंट्स को ठीक तरह से पढ़ो, उसको अप्लाई करो उस पर्टिकुलर आईपीओ पे, देन यू टेक योर ओन कंक्लूजन, उसके बाद जो कंक्लूजन निकलता है उसके बेस पे आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हो। जस्ट कि मार्केट में न्यूज चल रहा है बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, बहुत बड़ा आईपीओ आ रहा है, कोई 10,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, 20,000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी स्टेबल है, उस कंपनी में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, ऐसा कोई नहीं है, राइट।
हाई चांसेस हो सकती है वो कंपनी लॉस में भी जाए आईपीओ आने के बाद। अब लिस्ट हुआ 100 रुपीज को, तो वो जाए, वो कुछ दिनों में 50 तक भी आ सकता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान में रखना है कि आईपीओ क्यों रेस कर रहे हैं, किस लिए रेस हो रहा है। और अगेन, एज आई सेड, दीज 10 पॉइंट्स विच आई गिवन हियर: बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट, डेट कितना है, प्रोमोटर होल्डिंग कितना है, उसका आईपीओ का पर्पस क्या है, वैल्यूएशन क्या है, इंडस्ट्री आउटलुक क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है या नहीं है, और फाइनेंशियल रिस्क। ये सब चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद ही आपको जाके आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, ओके? Always apply for the IPO if you have good trust, if the business model is good. Otherwise, don't never ever apply for IPO. ये IPO सबसे बड़ा स्कैम है। लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू अपफ्रंटली कि आईपीओ अगर तुम बिजनेस अच्छा है तभी अप्लाई करो, अदरवाइज डोंट अप्लाई। मार्केट को लिस्ट होने दो इक्विटी को, राइट? पहले एक्सचेंज पे लिस्ट होने दो, लिस्ट होने के बाद फिर देखते हैं कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है, प्राइस एक्शन देखना, उसके बाद तुम प्राइस देखना भी, वो अप जा रही है, डाउन जा रहा है, उस हिसाब से आप खरीद सकते हो। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आईपीओ लिस्ट होता है प्रीमियम लेवल पे, जब ओपन होता है वो नीचे आ जाता है जो उसका एक्चुअल लिस्टेड प्राइस, तो आपको और कम प्राइस में आईपीओ मिल जाता है, राइट? एक दो आईपीओ मिस हो गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, ओके? तो आईपीओ को कभी भी ऐसे ये मत समझना कि आईपीओ मिस हो गया तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी चली गई इन्वेस्ट करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी फ्यूचर में उस प्राइस पे स्टॉक आ ही जाता है, उस प्राइस पे आप खरीद सकते हो, राइट? तो इतना ही है आज के लिए। तो जो हमने आज डिस्कस किया मास्टर क्लास 1 में कि शेयर मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, फिर मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन है, और आईपीओ क्या होता है, राइट? प्राइमरी मार्केट से रिलेवेंट, एंड देन व्हाट मींस व्हाट शुड वी चेक बिफोर अप्लाइंग फॉर आईपीओ, मतलब आईपीओ चेक अप्लाई करने से पहले हमको क्या क्या चेक करना है, राइट? ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद और देन थिंक, टेक योर ओन डिसीजन बेस्ड ऑन योर ओन एनालिसिस, राइट? सो गाइस, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड को। सो नेक्स्ट वीकेंड आई एम गोइंग टू कवर ट्रेडिंग बेसिक, अंडरस्टैंडिंग द प्राइस मूवमेंट एंड कैंडलस्टिक एनालिसिस। ये 3 टॉपिक मैं अगले वीकेंड में मास्टर क्लास 2 में कवर करने वाला हूँ। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड, स्टे वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा और नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।